your place, state. All right. Hi, everyone. It's nice to meet everyone. I'm Rhea. I'm from Red Dot Foundation, and I'm currently logging in from Bombay. To start talking about what the Youth Innovation Challenge is, we've had the Youth Innovation Challenge. We've hosted it for quite a few years now. I think from what I know specifically, I think 2018, 2019, 2021, there were youth innovation challenges throughout. However, 2021 was online, and this year we are looking to do a few events offline. To start off talking about what the Youth Innovation Challenge is, it's a derivative of this one particular event called the Urban Thinkers Campus that started a couple years ago. And it seeks basically to involve future leaders of various cities in India, the youth basically, to play a part in solving gender equality and climate issues due to rapid urbanization. So what we want to do is to invite the youth 17 onwards to come and participate in this particular challenge, talk about the ideas they may have to solve various issues that we are dealing with socially when it comes to gender equality and also when it comes to climate change. So combining those two particular issues, right? So in this particular year, we are asking young people who are from the ages of 17 to 25 to come join us. Come with your ideas, talk about how you think you can solve these particular issues with your innovations. We'd also like to tell you that we'd like team members to come together. So between 2 to 4 people in one team. And we want to make sure at least one team member is non-male. So it could be female, trans, non-binary, etc. Other than that, I'd also like to talk a little bit about this year's theme, and then I'll give the floor to Elsa to talk about the theme a little bit more. This year's theme is specifically going to be engendering climate action for hyper-local solutions. And that could include, water management, waste management, but the word engendering is incredibly important because we want to bring in the idea of gender equality into climate solutions. Elsa, I'd like to now ask you to talk a little bit more about the theme, if that's all right. Hi, everyone. Lovely to see such a robust, audience today. So, and from different parts of Maharashtra and Goa, etc. Looking forward to
seeing your ideas being submitted. So every year we host an Urban Thinkers campus for UN Habitat, and alongside it, we host a Youth Innovation Challenge on pretty much the same theme. However, this year we have two separate themes, pretty closely linked. So the Youth Innovation Challenge, as Ria mentioned, is engendering solutions at the community level. So engendering means looking at it from a gender lens. At the hyperlocal level means community level on two specific areas, on water and waste management. And it can be anything. So, it could address water scarcity, water security, or, waste upcycling, waste management, and any other thing that is relevant to it. So the form also has the various breakdown. So engendering water security means quality of water and sanitation, water scarcity and conservation, and water access. So under any of these three areas, you can propose a solution. In waste management, it could be waste disposal systems, preventing landfill waste, preventing plastic waste and pollution, and zero waste design. And then there's an open innovation category, which is hyperlocal and related to climate, right? So today, I mean, these are all very broad subjects. So, we want solutions that are simple, solutions that are practical, solutions that can be deployed in your community, solutions that are low budget, okay? So it's a chance for you to experiment. So for example, water. If you come from a rural area, do you get 24/7 water supply? No, you don't. Is there a better way to, store water, manage water, conserve water, come up with those solutions, right? So simple thing like plastic. Can you propose solutions that will prevent that plastic from going into the waste, into the landfill? Or how can we avoid plastic in the first place? Or how do we segregate waste in a better manner? Or how we can upcycle waste? Upcycle means, bring it back into circulation and create further products out of it. So anything is possible, but related to these areas on water and waste. Yeah. So this is just a broad overview of it. Please feel free to share your ideas as we progress so that we can help you think about it. But I think now I'm going to turn it over to Webavi to continue with the program. Thank you, Elsa. We will, before we go a little further, I would like to check with everyone if English is a comfortable language, or if it is okay if I switch English and Hindi for everyone, so that we can all be on the same page with the challenge, because I understand that we all come from different areas and we just want to help you understand the concept a little better. So it's okay if I switch Hindi and English a little bit? Okay. So in today's session, a general breakdown of what we are going to cover. थोड़ी सी चीजें मैं बताती हूँ जो हम सभी के साथ कवर करने वाले हैं. पहली चीज है जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कि ये चैलेंज किस बारे में, व्हाट इज द चैलेंज एग्जैक्टली अबाउट. दूसरी चीज है हम इस चैलेंज के स्टेप्स देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या इवेंट्स किस किस लेवल पर होती हैं. तीसरी चीज है, the third thing is that we will understand the overarching theme under which every innovation should fit. तो जो थीम जो हमें प्रपोज की गई है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उस थीम के अंडर हमारा आइडिया किस तरीके से फिट करना है, या उस थीम का अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो हम जानेंगे विद एन ओपन फ्लोर, जहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो.
चौथी चीज है, we will want you to interact with certain stakeholders who have been a part of this challenge with us. कुछ लोग जो जिन्होंने पिछले चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, उनसे हम बात करेंगे. तो हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट्स हैं जो पिछले चैलेंज में हमारे साथ पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था. एंड वी मे ऑल्सो हैव अ जूरी मेंबर टू मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द जूरी. जूरी आपके इनोवेशन से क्या एक्सपेक्ट करती है, ये भी एक पार्ट है इस वेबिनार का. और सबसे आखिरी चीज जो है, बिफोर रैपिंग अप, हम चाहेंगे कि हम आपके साथ बैठ के जो इस साल का फॉर्म है वो आपको समझाए, मगर पिछले साल के कुछ सबमिशंस के एग्जाम्पल के साथ, so that you can understand by going through these examples of last year's submissions, some submissions that were brilliantly done and some submissions that lacked a bit of nuance with wanting to be aligned with the theme, so that we understand how to frame our answers, how to frame our innovations, and how we can take that forward through the challenge. तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इस चैलेंज में डिस्कस करने वाले हैं. जैसे रिया और एल्सा ने थोड़ा ब्रॉड में जनरली बात की है थीम के बारे में, और ये चैलेंज कहाँ से शुरू हुआ इसके बारे में. वी विल नाउ टेक इट फॉरवर्ड टू, आई जस्ट चेक विद सोनाली इफ द past participants are here. Yeah, Vaibhavi. Okay, so I would like Sonali to call upon our past participants so we can understand how the journey of the challenge has been for you. What was your experience? And we would like you to specifically point out things on, for example, आपके innovation में जब आपने application दिया था, तो वो innovation कहाँ था, और through the challenge वो innovation कहाँ पहुंचा. दूसरी चीज, as a student, I understand a lot of us have a lot of things going on. So we would like to know how you manage time while participating in the challenge and with your educational commitments as well. Teamwork is another key element of this challenge. So हम चाहेंगे कि आप बताएं कि teamwork किस तरीके से balance हुआ है. And with that, I would just open the floor for the past participants to share their experience and their journey with us. Sonali? Thanks, Vaibhavi. So, yeah, hi everyone. Like Vaibhavi said, we have a couple of participants from last year here, and they will share with us their experience of being a part of the challenge, how their innovation developed, from the time they actually applied to the end of the challenge, how the mentoring helped them. We've asked them to talk to you about, how they spoke to their mentors, or how they, because that getting in touch with a new person is not always the easiest thing. Of course, we will put you in touch with the mentors, but what I mean is, it's not always easy to start the conversation. We'll also ask them to explain how the various master classes help them. So to begin with, I'm going to ask Priyal Agarwal. I see that she's already here. So Priyal and her team, Stand We Speak, were one of the winners last year. And her challenge was, I'm going to let Priyal explain how they started and how they developed their challenge. And Priyal, if you could also tell us a bit about, where your innovation has reached today and how being a part of this platform actually helps you. Priyal, over to you. Hello, everyone. First of all, thank you so much for inviting me here. So talking about Stand We Speak, it's a sex tech organization, and we are building a 21st century sexual health ecosystem for youth. Talking about the journey, we started with just an idea as to what we wanted to do, how we wanted to solve the problem. And currently I'm in South Korea because we got accepted in a program, and they are helping us establish our entity here in South Korea. So in the last 1 year, we received grant from the government of India, from US government, and now from the government of South Korea, who are helping us develop our solution and scale it up. I think before, like a year back, when we started off, it was just in the prototype stage where we were just building like a small solution. So we have a chatbot
that provides answers. Then we have videos, products, sexual wellness, menstrual hygiene products, teleconsultation with experts, and tons of other resources. So this was something that we were building when we applied for this program. And if I talk about what we gained in those 3.5 months, was mainly, I can break it down into 3 things. Number 1 was preparing your presentation and improving your pitching skills, because there's a lot that you are doing in terms of what the problem is, what is your solution, why you're solving it, how are you going to gain customers, how are you going to make money, and tons of other things. So this entire program really helped me fine tune all of those things and put it down very concisely in form of a PPT that could be explained in 3 to 5 minutes. The second thing that I gained was through mentoring sessions, because I was fortunate enough to have 2 mentors, and they really helped me understand what was it that I was lacking and what I could really improve in terms of the entire solution, because they have been in this domain for a very long time. And since we were building a solution that was gender inclusive, so getting to understand the difficulties that the community actually face in terms of accessing these solutions, that really came in from my mentors. So having regular sessions with them really helped me. Another thing that was really amazing about the program was through master classes and through more sessions, we also got connects with other experts. So since my solution is in sexual health domain, we also got connects with Mr. Deep Bajaj, who is the founder of Sirona. So having an opportunity to just talk to them and ask questions and understand what they're doing, and since they have been in this domain for the last 7 to 10 years, so getting those connects, getting that opportunity to speak to them, and just improving, pitching your solution, improving your solution is something that is really helpful, because once you do that, you gain more confidence about your solution. I also got an opportunity to speak to Mr. Vikas Bagaria after that, who was the founder of PSafe. So it opens tons of opportunities for you once you know what you want. But one thing that you would really need is to be proactive in terms of knowing what you need and asking for it. The third thing that I would say that I learned during the tenure was planning how to really scale or how to build your solution. So those 3.5 months, we started from the prototype stage to launching phase and gaining initial customers for beta testing. And that happened in 3 months. So I knew how much time it would take further, and we have come so far in the last 1 year. So that experience really helps you to really build your solution in that time. If you have any questions, I'd be happy to answer. Priyal, could you tell them a bit about, you mentioned about, how to ask your mentor the correct questions. Maybe tell them how was it when you actually met your mentor for the first time, breaking the ice with your mentor for the first time? Before Priyal, yeah, go ahead. Gauri. sorry. Before Priyal answers the question, I would just give a small summary of what Priyal has said in Hindi to a larger audience, if that is okay. तो जैसे आप जानते हो, प्रियल हमारे लास्ट ईयर के पार्टिसिपेंट रह चुकी हैं, जिन्होंने अब उनका इनोवेशन बहुत आगे ले जा चुके हैं। ये साउथ कोरिया में अब उनके इनोवेशन पर काम कर रही हैं, जहाँ से उनको फंडिंग्स भी मिली है, इंडियन गवर्नमेंट से भी मिली है, कोरियन गवर्नमेंट से भी मिली है। प्रियल हमें बता रही थी कि चैलेंज के दौरान आपको बहुत सारी स्टेजेस आएंगी जहां पर आपको नई चीजें लर्न करने मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, मगर वो सीखने के पहले आपको उस चीज के लिए पुश करना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे चैलेंज आपको मेंटर्स देता है, इस चैलेंज में हर पार्टिसिपेंट को हम एक्सपर्ट मेंटर्स देते हैं जो उसी फील्ड से आते हैं। तो उन मेंटर्स के साथ आपको रैपो बिठाना है, उनके साथ आपकी पर्सनल
कॉन्वर्जेशंस होंगी, उनके साथ आप अपने आइडियाज को बाउंस ऑफ करोगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये एज अ पार्टिसिपेंट आपको उनके साथ करना चाहिए। और प्रियल कह रही थी कि इनके पास 2 एक्सपर्ट्स थे जिनसे उनको काफी नॉलेज ही नहीं बल्कि आप एक नेटवर्क में पहुंचते हो जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान को रेफर करता है और उस तरीके से आपको और एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं कि आप अपने इनोवेशन को चैलेंज के होने के बाद भी एक पुश कर सकते हो। तो ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज का बेसिक आइडिया जैसे प्रियल बता रही थी है कि आप इस चैलेंज में जो भी आपके इनोवेशंस है उनको फाइन ट्यून कर सकते हो, उनके बारे में एक्सपर्ट से बात कर सकते हो और फिर इसको पिच कर सकते हो आगे। और पिच करने के लिए भी आपको मास्टर क्लासेस दी जाती हैं जहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल सिखाया जाएगा क्या होता है, जहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा कि आप किसी से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात किस प्रकार से करोगे। तो ये सारी चीजें प्रियल बता रही थी कि उनको उन्होंने काफी इंजॉय किया और उनको काफी पुश मिला है थ्रू द चैलेंज कि वो अपने इनोवेशन को आगे ले जाए। अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस के लिए ओपन रखती हूँ। So Lani, over to you. I think you were asking a question. Yes, I was just asking if Priyal wanted to talk a little bit about breaking the ice with her mentor when she just met them for the first time. So talking about mentors, what I really did was because they have a certain expertise and they are here to help, but even to seek help, you need to be very clear about what you want. So I had already prepared a list of people I needed connect. So I made a list of people that I wanted to be connected with. And in terms of pitching, I lacked a certain things. So I noted down everything and I made sure that I communicate the things that I would want from them in the coming few weeks. So even in the initial meeting, we set goals for ourselves that in the next 2 to 3 sessions, in the next 4 sessions, we would be talking particularly about these things. And these are the things that they could help me with. So that really helped us gain more clarity from both of our ends. And also the expectations were really clear. And setting the agenda in the first meeting itself really helped us throughout the process because it gave them enough time as well to prepare for the things that we needed. So that was something that I did in the first meeting. थैंक यू प्रियल। प्रियल ये कह रही हैं कि जब आपको चैलेंज के थ्रू किसी एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है, जब आपको किसी एक्सपर्ट के साथ मिलाया जाता है जो आपको आपके इनोवेशन को आगे ले जाने के लिए मदद करेंगे, प्रियल कह रही है छोटी छोटी चीजें जो मायने रखती हैं इस चैलेंज में, जैसे आपको उन एक्सपर्ट को बताना है कि आप उनसे क्या चाहते हैं, किस तरीके का गाइडेंस आपको चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जब आप अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे तो आप अपने गोल्स कुछ चीजें सेट करके रखें कि मुझे ये सारी चीजों पर फोकस करना है या फिर ये क्षेत्र है जहां पर मुझको थोड़ा और इम्प्रूव करना है। उस तरीके से आप अपने आप पर एक टाइमलाइन लगा सकते हैं जिसके थ्रू आपका इनोवेशन और आगे जा सकता है। तो बेसिकली प्रियल जो कहने की कोशिश कर रही है कि सारी चीजें एकदम क्लियर कट रखिए। एक्सपर्ट्स आपको मिल रहे हैं आपके क्षेत्र के, आपके पास इनोवेशन है, तो उस चीज का सबसे ज्यादा फायदा आप किस प्रकार से उठाओगे वो आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू। Thanks, Beverly. Do we have any more questions for Priyal before we go on to our next participant from last year? Okay, thanks so much, Priyal, for sharing all of that. I'm sure it was really. I'm sure everyone found it really interesting. Thanks very much, and all the best to you. Thank you. Thank you so much. So now I'm going to ask Mithila to share a bit about her experience about as being part of the project. Mithila and her team, who were the Hunger Map project,
were also among the winners last year. So, Mithila, over to you. Let us just talk a bit about your journey and how you started, where you are now. Thanks. Yes, thank you so much, Sonali. It was really nice hearing you, Priyal. Almost took me back to last year when we'd all, come together and pitch up projects. So it almost feels like, yes, I will switch over to Hindi in the middle. ऐसे लगा कि बीच में कि इस बारी हम दोबारा नहीं आ रहे, but ऐसे लगा कि हम लास्ट ईयर में ही है, हम खुद के प्रोजेक्ट्स पिच कर रहे हैं. मैं सोच रही थी क्या बोलना है, कैसे बोलना है. So it was very really nice. Thank you so much, Safe City team, for having us both here to share our experiences. One, it's been very enriching. हमारा प्रोजेक्ट हंगर मैप के ऊपर था, जो कोविड-19 2 साल से चलता आ रहा है. उसके आधारित हमने एक प्रोजेक्ट पिच किया था. So our team pitched the community kitchen model as a solution to the hunger problem in Mumbai. भूख तो हमारे शहर में हमेशा से रही है, but कोविड पैंडेमिक के दौरान ये भूख और हमें देखने मिली, जानने मिली, बहुत करीब से देखने जानने मिली. और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने मार्च 2020 में वॉलंटियरिंग करके एक रिलीफ प्रोग्राम, एक रिलीफ रिस्पॉन्स मुंबई सिटी में स्टार्ट किया था, जिसका नाम था खाना चाहिए. और हम we basically responded to the hunger that was central to human existence, but जो बहुत ज़्यादा देखने मिला पैंडेमिक ने. और हमारी आइडिया ये थी कि एक कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं है जो कॉम्बैट कर सके हंगर अर्बन इंडिया में. ये बहुत दुखद बात है कि आज भी हमारे देश में भूख ये बहुत बड़ी समस्या है. और कई लोगों को, जो हम बोलते हैं बम्बई नगरिया, जहाँ लोग सपने देखने आते हैं, वहाँ पे एक टाइम का खाना नहीं मिलता बहुत सारे लोगों को. और हमारा आइडिया ये था कि हम कैसे इसको थोड़े स्केल पे सॉल्व कर सके. हमारा आइडिया नया नहीं था, बट ये कनेक्टेड था जो काम खाना चाहिए 2 साल से करता आ रहा है. और हमारी जो टीम थी वो पॉलिसी सेक्टर से, डेवलपमेंटल सेक्टर से ही थी. तो हमें पॉलिसी, एक हंगर पॉलिसी का एक बैकग्राउंड था. हमें जो कोचिंग मिली सेफ सिटी से, वो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है हमारे हिसाब से. एक तो जो इंटरनल टीम है, they've helped us one put their heart and soul in making sure they connect us to the right people, which is really important. Two, we were able to speak to the right mentors. We were able to perfect our pitches because idea तो हमारे पास थी, खाना चाहिए के माध्यम से हम करते भी आ रहे थे. बट हमारा जो आइडिया हमें आगे ले जाना था, उसको स्केल तक डेवलप करना था, वो हमें सेफ सिटी ने सॉर्ट ऑफ एक सपोर्ट सिस्टम बना के दिया, एक नेटवर्क सिस्टम बना के दिया. हमारे 2 मेंटर्स थे. हमारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमने ये जाना कि हमारे 2 बड़े प्रॉब्लम्स थे. एक था हमारा, हमें स्केल पे काम करना था, और दूसरा था अगर हमें स्केल पे काम करना है तो हमें ग्रांट्स, हमें पैसे, हमें फंड रेज करना होगा. तो हम वो कैसे कर सकते हैं. तो जो टीम ने हमें 2 मेंटर्स कनेक्ट करवा के दिए. एक उनका बैकग्राउंड था फंड रेजिंग में, उनका बैकग्राउंड था होटल इंडस्ट्री में, तो हमें मदद कर पाए सही दिशा को देखने को और हमारे प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए. हम जब चले थे ये पिच करने, तब हम बहुत एम्बिशियस थे, बट हमारे एक मेंटर्स ने हमें ये भी बताया कि हमें फाइन ट्यून करना है, हमें ये जानना है कि हमें
सोल्यूशन बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, बट कैसे सही से एक एक कदम बढ़ा के कैसे उसको सॉर्ट करना है, उसको सही से करना है। तो हमने जब मेंटोर से बात की, it wasn't the easiest because we were all working professionals. We were working in our jobs, but we made sure that we made time, and as a team I think we connected better, because we would at the end of the day from 11 to 12 each day sit and ensure that we would work our ideas and sort of put it out there, and we would ensure that we would speak to our mentors at intervals to let them know about the progress that we were having on our sides as well. Yes, that is from my end. थैंक यू सो मच मिताली, आपने जो आपका एक्सपीरियंस शेयर किया है, आई एम श्योर उससे स्टूडेंट्स कुछ सीख सकेंगे। फ्लोर में ओपन रखूंगी कि अब समय है आपका क्वेश्चंस पूछने का, किसी से जिन्होंने पहले भी पार्टिसिपेट किया है और जो किसी प्रकार से एक चैलेंज में इतने आगे पहुंचे हैं। तो किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हाथ ऊपर करके क्वेश्चन पूछिए। यही आपके पास समय है कि आपको चांस मिलेगा जो जिन्होंने पहले भी पार्टिसिपेट किया उनसे फ्रैंकली बात करने का। मुझे पता है आप सबके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब हम आप लोगों को कॉल कर रहे थे तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पोज किए। अब वही क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पर पोज करेंगे तो शायद आपको आंसर्स और डिफाइंड वे में मिल सकते हैं। मिताली, आई विल ओनली आस्क यू, मैं पूछूंगी आपको एक क्वेश्चन जो आई थिंक सबसे ज्यादा मोस्ट अकरिंग, Yes. most common question that was asked was, how did you believe in the idea that you had was good enough to pitch? Means a lot of people have ideas but they just want that one push कि मैं किस तरीके से एक उस चीज से आगे आऊं। Right. So जैसे मैंने पहले कहा, हमारा ये बहुत क्लियर था दिमाग में कि हमें मदद करनी है लोगों को, क्योंकि हमने 2 साल जो काम किया था ग्राउंड पे, तो जो खाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन है उसके हम वॉलंटियर्स भी थे। तो हमारा पहला रिस्पांस था, जब हमें वायरस के बारे में भी नहीं पता था ज्यादा, हमारा पहला रिस्पांस था कि हमें मदद तो डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि हम उस प्रिविलेज से आते हैं कि हम जाके ग्राउंड पे मदद कर सके। तो जब खाना चाहिए का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जब सेकेंड लॉकडाउन आया तब हमने कम्युनिटी किचन्स खाना चाहिए के माध्यम से स्टार्ट किए थे, और उसका इम्पैक्ट हमने कम्युनिटी पे देखा कि लोग खुद काम कर रहे थे, खुद पैसे कमा रहे थे, उसके जो सक्सेस स्टोरीज हमने खुद सुनी जानी, और ये लिव्ड एक्सपीरियंसेस है। जब हमने उनसे जाके बात की, समझा कि क्या प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम ये नहीं था कि खाना नहीं था, बट अगर हम उसके साथ ही साथ अगर लोगों को, उनके परिवारों को सपोर्ट कर सके, उनको एक माध्यम दे पैसा कमाने का, और उसके साथ ही साथ कम्युनिटी को मदद भी हो, तो ये हमने बहुत, जैसे मैंने कहा, ये लिव्ड एक्सपीरियंस था, बहुत क्लोजली देखा, और हमें पता था कि ये जो कम्युनिटी किचन मॉडल है ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बन सकता है, एक भुखमरी का, और दूसरा एक लाइवलीहुड का, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का। तो उस माध्यम से हमें एक कम्युनिटी को सपोर्ट करना था, उसके लिए फंड रेज करना था, उसके लिए हमें पता चला कि कितने प्रॉब्लम्स आते हैं फंड रेज करने में, जबकि आपकी आइडिया भी सही हो, पर आप ये कहाँ डालोगे, कैसे करोगे, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है। और मैंने ये ऐड नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था।
अभी फिलहाल कम्युनिटी किचन अभी तक शुरू है, जारी है, चल रहा है। और हमारा आइडिया था उस कम्युनिटी किचन को सिर्फ कम्युनिटी ना रखते उसको कमर्शियल एंटरप्राइज बनाना, ताकि उसमें से जो महिला है उनको एक रोजगार मिल सके, उनके परिवारों को एक सपोर्ट सिस्टम मिल सके। तो हम उन बच्चों के साथ अब काम करते हैं। अब हमने पिच करवा लिया है, जैसे हमने पहले लास्ट ईयर सोचा था। तो वो थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि इट्स पैनिंग आउट टू बी व्हाट वी प्लान्ड आउट एंड वी सेट आउट टू बी, maybe not at the fastest pace that we planned, but we can see that we're slowly reaching there nonetheless. That's really commendable, मिथिला। आपका भी इनोवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये मुझे अच्छा लगा कि आपको चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के बाद काफी सारी चीजें समझ में आई, जैसे बजटिंग होती है, बिजनेस मॉडल है, आइडियाज हैं, मगर उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, या जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म ले जाना है, मैक्सिमम इम्पैक्ट किस तरीके से पड़े आपके काम से, आपके प्रोजेक्ट इनोवेशन से होगा, वो आपको चैलेंज से सीखने को मिला, which is something I'm very very happy about, and I'm very happy that you're taking it forward as well. So good luck with that. We are always here to support you and root for you. Thank you, Priyal and Mithila. Thank you so much. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं। हम लोग कॉन्स्टेंटली आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे थ्रू चैट बॉक्स एज वेल। अब जब आपने थोड़ा सा ओवरव्यू जाना है चैलेंज का, आपने हमारे पिछले पार्टिसिपेंट से भी बात की है, नाउ वी विल मूव ऑन टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्रेकडाउन ऑफ द चैलेंज, कि ये चैलेंज में क्या क्या स्टेप्स है और किस तरीके से आप इस चैलेंज में आगे बढ़ेंगे। तो उस चीज के लिए मैं चाहूंगी कि मेरी कॉलीग सोनाली अब फ्लोर ले और हमको ब्रेकडाउन दिखाए कि चैलेंज का किस प्रकार से हम चैलेंज में आगे बढ़ेंगे, इसके स्टेप्स क्या है। सोनाली, द फ्लोर इज योर्स। Thanks, Vaibhavi. Vaibhavi, before we do that, could we speak to Dipali Nimbalkar first, and maybe she can talk to us about helping them to understand what kind of solutions we really expect. So if I can call on her, she specializes in wastewater management, in solid waste management, communication planning and implementation of projects, environmental education, teaching, training, editing. So it's like right up the alley of the project and the subject of the project. So could we call on her to help our participants understand really what sort of solutions we can expect? Maybe, give them some ideas. Ma'am? Yeah, so hi everyone. Such a pleasure to see such a large turnout from young people for this innovation challenge. And I must thank Elsa and her team for, picking up these two subjects, water and also waste management. जैसे I'll also keep switching between English and Hindi, so लोगों को समझने में आसानी हो। तो आप अगर आजू बाजू को भी देखेंगे आज, तो वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इवन इन अ सिटी लाइक मुंबई और पुणे, or even in the rural areas, you see waste dumped everywhere. And even today, wastewater treatment is such a big issue that large portion of our waste is yet not treated and is discharged into rivers, so contributing to a lot of pollution and deterioration in environmental quality. And of course, the water issues, that water scarcity is here to stay. It's we think it's an unlimited resource, but it's not so. So these challenges, ये जो challenges हैं आज के लिए दुनिया भर में कहीं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन खासकर एक भारत जैसे देश के लिए तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे हम लोग एक MSc कोर्स कंडक्ट करते हैं पुणे यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल साइंसेस में, एंड आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स,
that the opportunities in waste management and in wastewater treatment are so immense. I was just was conducting the opening lecture for my MSc 1 students, and this was one of the issues that we discussed. Bharat mein, because there is, it's a very growing field, and one thing which you people have talked about, यहाँ जिस challenge में जो बात की गई है कि you're looking for hyper local solutions. So I think ये सबसे important है, क्योंकि छोटे छोटे solutions ही अक्सर काफी बड़े चीजों के problems को solve करते हैं. जो चीज एक गांव में वर्क करेगी वो एक शहर में नहीं वर्क करेगी. What will work in Mumbai may not work in Pune, depending on lot of other conditions. Today we see, when we talk about wastewater treatment, तो wastewater treatment में अगर या waste treatment में अगर आप गांव से हैं, so in rural Bengal, there used to be these small fish ponds behind every house, where the fish were growing, but some of the wastewater also used to be discarded, discharged into them. So it was like a treatment system, as well as their water was being absorbed in the ecosystem itself. Even in small villages in Maharashtra, even today, there is this vegetable that we eat. It's called arbi, colocasia leaves. So the water which goes out from the kitchen is often left in this garden or a small patch where this arbi goes. So something like that. And today when we talk on a larger scale, we talk of treatment systems which are natural. Then today energy is a big challenge. We also can, produce our own energy for the needs in the kitchen. Everybody has heard of biogas. People talk of making their kitchens LPG free. Now LPG free can be made with solar also. But there's also another thing where you use your own kitchen waste and, instead of composting it, you digest it and produce biogas from that, which can be used in your own kitchen. So it not only solves your waste challenge, but it also solves your energy challenge. So these kind of solutions are there. It's just that there will be examples, traditional examples, modern examples from communities all over the world. It is just left to these students or the participants of the challenge, how they can take inspiration from these existing solutions and see how they can be applied. Or of course, if they have their own ideas and come up with something which can then be scaled up and lead to a much better system. Today we talk of plastic. Plastic is such a big issue. There is a plastic ban also, but despite that fact, we have not been able to reduce our dependence on plastic. But even during the pandemic, we have heard of examples when one lady from Kerala, she made the mattresses from recycled PP kits. So it is, I think, the youth the age group that is going to be participating in this challenge, they're very intelligent, they're exposed to a lot of ideas. So it's just putting your ideas and turning them into applications so that, your problem of water or wastewater and waste management is simultaneously solved. There are a number of traditional examples now. The Ganesh festival is also coming up in another few days. We talk about Ganesh idols being discarded after the festival, but then there are people who have clay idols with seeds planted inside them,
and so that it doesn't create water pollution, but you grow a tree out of that. All this nirmalya, that is the flowers used in the puja, how that can be composted, or I mean not let out into the water, creating more pollution. So I mean there would be solutions for particular events like the Ganpati festival, or we have this huge Pandharpur Yatra which goes on for a month. People traveling, it's a pilgrimage from Pune to Pandharpur, and during this period there's a lot of waste generated, sanitation issues. So people could work on how do you manage the waste, or ensure that water scarcity is not there for the pilgrims, and how do you manage all this. So your waste management or water management ideas could be pertaining to such particular events, for just your regular day-to-day life in general. So it doesn't have to be about a particular thing, but you just have to think how something innovative could be turned into an application that would really benefit these two areas. So I'm sure there are about 91 participants in this Zoom call. It's quite a good number, Elsa, and I hope many of them come up with ideas. And the good thing about such a thing is, even if you don't win the challenge, I think the exposure that you get and the confidence that you gain to pitch across your ideas would in itself be a tremendous opportunity for all of you. So it's up to all of you how you make use of this opportunity and, elevate yourself and also come up with a good idea. So that's it from my side. And I hope I did stir something up here. So that's it. Thank you. Thank you so much, Dipali ma'am. You have given us some really good examples. अभी जो मैम ने आपसे बोला है, मैम ओवरआर्चिंग थीम के बारे में बात कर रही थी, और मैं जानती हूँ कि आपके पास बहुत क्वेश्चंस है थीम को लेके. आप इस समय अपने क्वेश्चंस पुट फोर्थ कर सकते हैं, आपके आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके थीम के अंडर, इस थीम ओवरआर्चिंग थीम के अंडर आपका इनोवेशन बैठता है कि नहीं. आपके पास दीपाली मैम है, और इनके बाद हम एक और एक्सपर्ट से बात करेंगे जो हमारी जूरी मेंबर भी रह चुकी हैं, वो आपको एक्सपेक्टेशंस बताएंगी. पर उसके पहले मैं चाहूंगी कि आप, अगर किसी के पास दीपाली मैम के साथ दीपाली मैम के लिए क्वेश्चंस है, तो आप उनको अब पोज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं. Everyone is shy. Yeah, I think that's the problem. But once they start thinking, maybe their questions will come up. There are no wrong questions, so please feel free to ask. But thank you, Dipali. Those were really great examples. I had not thought of half of them, but yeah, those were amazing. Yeah, thank you for giving me this opportunity. It's always great to connect with young people, and of course with you and your team as well. Thank you, ma'am. The floor will be open for anyone whoever wants to pose a question. मगर क्वेश्चन इसके पहले मैं चाहूंगी कि हम हमारे एक और एक्सपर्ट से बात करें. इनका नाम लता मैम है, जो हमारे पार्टनर हैं इस चैलेंज की, और वो एक सीईओ और इको ट्रेनर भी है अपने खुद के कंपनी का, जिसका नाम है डेवलप मैट्रिक्स. तो वो आपसे बात करेंगी इन बारे में, पहले थीम के बारे में, और बिल्कुल जूरी की एक्सपेक्टेशंस क्या है इस इनोवेशन से. तो दोबारा मैं कहूंगी, क्वेश्चंस के लिए झिझकना मत, प्लीज पूछिए. This is the time. This is exactly the time. And like Elsa said, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं है. आप आके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हो. अगर आप बात करने से झिझक रहे हो तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हो. Yes, Lata ma'am, the floor is yours. Thank you so much, Vaibhavi. Hi everyone. सबको मेरे तरफ से
नमस्कार। और पहले तो आप लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, जैसे डॉक्टर दीपाली मैम ने बताया, अराउंड 1991 है। तो आप लोगों ने टाइम लिया, अपना कीमती समय लिया और थीम अंडरस्टैंड करने के लिए भी जो आप प्रयास कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए थैंक यू। एंड दीपाली मैडम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो पहले तो मैं इतना ही कहूंगी कि जब एल्सा और मैं, मतलब रेड डॉट फाउंडेशन और डेवलप मैट्रिक्स, हम इस साल की थीम के बारे में सोच रहे थे, तो कोशिश यही थी कि पहले तो क्लाइमेट चेंज, और हमारे हमेशा हर साल यूथ इनोवेशन और यूटीसी का यही मकसद है कि ओवर आर्किंग जो बोलते हैं, सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोचना है। तो जेंडर इक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज का जो मिश्रण है, उसमें उससे हमको क्या, हम यूथ इनोवेशन के लिए क्या आइडियाज के लिए थीम प्रोजेक्ट कर सके, ये पहले हमने जब सोच रहे थे। तो क्लाइमेट चेंज पहले तो बहुत ही वास्ट है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक समुद्र की तरह है। तो उसमें से अभी गिन चुन के जो एकदम हॉट टॉपिक जो कहेंगे, नॉट हॉट टॉपिक बिकॉज ट्रेंड हो रहे हैं, बट ऑल्सो हॉट टॉपिक बिकॉज राइट नाउ, आज के दिन में भी, आज के तारीख में भी ये दो थीम्स जो है हमको इम्पैक्ट करिए इंडिया में एज वेल एज कहीं और भी, अब्रॉड में भी काफी कंट्रीज में। सो वो दो थीम है क्लाइमेट चेंज के अंदर आ रही है, बिकॉज जैसे मैं एल्सा को बता रही थी, हम लोग का जो डेवलप मैट्रिक्स का एम यही है, हम लोग कॉर्पोरेट्स या कंपनीज को एडवाइस करते हैं कहाँ उनको इश्यूज, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है एनवायरमेंट रिलेटेड, कहाँ दे कैन आइडेंटिफाई या उनको पहचान के हाउ टू देन गो अहेड एंड उसके बारे में उन लोग आइडिया सोच के उससे इनोवेट करके रेड्यूस करना चालू करें, ताकि फिर आगे जाके क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो हमारे पर हो रहा है वो भी कम हो जाए। तो उस सिलसिले में हम लोग एक एनालिसिस टूल यूज करते हैं, क्लाइमेट रिलेटेड सिनेरियो एनालिसिस कहते हैं उसे। ये ऑलमोस्ट दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलके उन्होंने जितने भी रिसर्च या स्टडी किया है, सभी वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च करके, स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार किया था, विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द IPCC रिपोर्ट। एंड उस रिपोर्ट के अंतरिक्त अगले जो 50 साल यानी 2050 या 2050 तक काफी कुछ चेंजेस हो सकते हैं हमारे प्लैनेट में, धरती में, विच इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। मेन मुद्दा ये है कि जैसे हम भी अभी एहसास कर रहे हैं इंडिया में, जैसे भारत में आप जहाँ पे भी है, मुंबई हो, पुणे हो, या इवन सतारा हो, तो पिछले 5 साल से कन्वर्ट करने का जो तरीका है, उस हिसाब से दे हैव बीन स्लॉटेड इनटू वेट वेस्ट। सो फूड वेस्ट, एनी फूड लेफ्ट ओवर, गार्डन वेस्ट जैसे कि आपके लीव्स, पत्ते, फूल, इवन जो हम हार खरीदते हैं, हार की माला जो खरीदते हैं, वो भी वेट वेस्ट ही कहा जाएगा। तो वेट वेस्ट को कंपोस्ट करने का एक आसान तरीका होता है, एंड देयर आर वेरियस सॉल्यूशंस इन इट, बट देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपको काफी उसमें अपॉर्चुनिटीज है, उसमें भी इनोवेट करने का आसान तरीका कैसे हो सकता है, कंपोस्ट करके उसको इनोवेशन करने के लिए। दूसरा है मेन जो बड़े वेस्ट हैं, जैसे आपके ड्राई वेस्ट कहते हैं, ड्राई वेस्ट फॉर एग्जांपल पेपर, और पेपर का वेस्ट काफी है, एंड पेपर अगेन इज इजीली रिसाइक्लेबल कहते हैं। इसीलिए वेस्ट को हम 3 वेस्ट के रूल्स फॉलो करते हैं,
रीयूज, रिसाइकल एंड रिस्टोर, या आप अपसाइकल भी कह सकते हो। मतलब आप वही चीज को वापस किसी और चीज में इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इसे हम जीरो वेस्ट डिजाइन पे कहते हैं। इसीलिए हमारा जो थीम भी दिया है हर एक वेस्ट में, आप नोटिस करोगे, एक तो लैंडफिल बेस्ड वेस्ट है या आपके किचन बेस्ड वेस्ट है, दूसरा है आपका प्लास्टिक वेस्ट एंड पोल्यूशन। जैसे जो दीपाली मैम ने बताया, प्लास्टिक वेस्ट आजकल काफी बढ़ गया है, क्योंकि प्लास्टिक हम जो पहले जो भी ऑल्टरनेटिव चीज हम यूज करते थे उसकी सभी की ऑल्टरनेट इसमें प्लास्टिक में बन जाती है आजकल। तो पहले हमारे जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे वो प्लास्टिक तो यूज ही नहीं करते थे। दे यूज टू यूज पीने का पानी के लिए आइदर ग्लास या स्टील का इस्तेमाल होता था, तो या फिर मटके का। सो उसका ऑल्टरनेटिव आया क्योंकि इट वाज लिटिल बिट कॉस्टली। मतलब स्टील obviously is costlier than a plastic bag or a plastic plate, but स्टील का जो प्लेट है आप 20 साल के आप पूर्वजों तक यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरे घर पे मैं जिस थाली में खाना खाती हूँ वो मैं बचपन से यूज करके आती हूँ, और शायद मेरे पहले मेरे माता पिता ने वो शायद पहले यूज भी करते थे। तो इस हिसाब से प्लास्टिक however we cannot use for lifetime। प्लास्टिक हम एक शॉर्ट पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का प्रॉब्लम है जब हम उसको डिस्कार्ड करते हैं या उसे फेंकते हैं वो वेस्ट बन जाता है। एंड प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो डिकम्पोज होने के लिए 200 साल 100 से 200 साल लगाती है। मतलब प्लास्टिक हमारे मरने के बाद भी प्लास्टिक रहेगी धरती पे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम या हमारे माता पिता या इवन हमारे बच्चे, उनके लाइफ टाइम खत्म होने के बाद भी वो जो प्लास्टिक हमने ये साल में फेंका था वो तभी भी रहेगा। तो उसके लिए प्लास्टिक इज ऑल्सो कंसिडर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन वेस्ट, क्योंकि वो खत्म नहीं होता, वो डिकम्पोज नहीं होता है। और अगर प्लास्टिक को आप जबरदस्ती उसको अगर आप ब्रेक करके उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, प्लास्टिक इज एट द एंड ऑफ द डे, प्लास्टिक बनता किससे है? प्लास्टिक बनता है फॉसिल फ्यूल से, जो इट्स बेसिकली बाय प्रोडक्ट है। वो जो भी फॉसिल फ्यूल यानी आपकी पेट्रोल या डीजल जहां से बनती है, जहां से कन्वर्ट होती है, उसका बाय प्रोडक्ट प्लास्टिक बनता है इन द नेम ऑफ पॉलीमर। तो एनी पॉलीमर और एनी प्लास्टिक इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ कार्बन। तो अगर आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे किसी और चीज में तो आप इनवेरिएबली ज्यादातर कार्बन एमिट करोगे। तो प्लास्टिक का दो प्रॉब्लम है, एक तो वो डिकम्पोज नहीं होता है, बिकॉज ऑफ इट इट्स डिफिकल्ट टू डू एनीथिंग विद इट। मतलब उसका खत्म होने के बाद, आपके इस्तेमाल होने के बाद उससे कुछ और करना मुश्किल पड़ता है। दूसरी चीज है, अगर आप उसको केमिकली ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स ओरिजिनल केमिकल कॉम्पोजिशन विच इज कार्बन। तो कार्बन ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है, एंड मोर कार्बन रिलीज इज ऑब्वियसली व्हाट वी कॉल टुडे ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होता है, एंड अगेन क्लाइमेट चेंज ऑल्सो बिकम्स मोर। सो प्लास्टिक इसीलिए बहुत डेंजरस माना जाता है आज के तौर पे। तो सो द वेरियस इनोवेशंस दैट आर हैपनिंग टुडे, आज अगर देखोगे फेस पे काफी कुछ इनोवेशंस हो रही है, काफी आइडियाज जनरेट हो रहा है। डिमांड और सप्लाई अगर कहना पड़े इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो there is lot of demand and there is lot of demand in fact in the market for if anybody is able to come with anything to solve the problems regarding waste। and demand for water obviously ज्यादा ही है, पानी के लिए डिमांड तो बढ़ता ही जाएगा, जब तक आबादी भी बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से हाउ कैन वी कंजर्व या प्रिजर्व वाटर एंड येट केटर टू द डिमांड, ये आपको एक रेडी डिमांड है। तो अगर बिजनेस के तौर पे कहा जाए तो जहां पे ज्यादा डिमांड होता है वहां पे ऑब्वियसली देन देयर विल बी मोर बायर्स या मोर कस्टमर्स। सो सिंपल सा बिजनेस सॉल्यूशन है
वाटर एंड वेस्ट टुडे अगर कोई भी उस पे इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आए तो आपको बहुत सारे कस्टमर्स इजीली मिल जाएंगे. So in that way also water and waste are going to be also the most hottest topics for the next many years. मतलब अभी नहीं ऑलमोस्ट 50-100 साल तक तो ये टॉपिक्स रहेंगे. तो कहने का मतलब है आपका जो बिजनेस सॉल्यूशन रहेगा या आपका जो भी सॉल्यूशन रहेगा, एक तो सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, और दूसरी बात है कैपिटल प्रॉब्लम जो हम कहते हैं यानी कैश फ्लो, उसको भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है अगर आप वेस्ट या वाटर पे कंसंट्रेट करेंगे तो एज अ इनोवेशन. सो मेरे तरफ से बस इतना ही है. एंड व्हेन वी कम टू जजिंग, जो हम ये यूथ इनोवेशन का जो इवैल्यूएट करते हैं आइडियाज को, तो जहाँ तक है, क्योंकि मैं काफी साल जूरी भी रह चुकी हूँ और फर्स्ट ईयर से हमने रेड डॉट के साथ कोलैबोरेट किया था फॉर यूथ इनोवेशन के लिए, तो इवैल्यूएशन भी हमने शायद सोचा था. तो एक है पहले तो हाउ इनोवेटिव इज द सॉल्यूशन. कहने का मतलब है आपकी जो भी सॉल्यूशन हो, वेदर वो सर्विस टाइप हो या इवन प्रोडक्ट टाइप हो, कितना अलग है, उस पे कोई भी अगर उसकी जैसा और कोई सामान्य आइडिया हो या सॉल्यूशन होगा तो शायद हम उसके लिए कम मार्क्स देंगे. तो आपका जो सॉल्यूशन, वेदर वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, वो असामान्य होना चाहिए या इनोवेटिव होना चाहिए, एंड इट हैज टू बी कंप्लीटली इनजेन्युइन. अगर ऑब्वियसली अगर ऑलरेडी सॉल्यूशन मार्केट में आ चुका है, ऑलरेडी किसी और ने ये सॉल्यूशन सुझाव प्रस्ताव किया है, एंड देयर इज समथिंग, और उन्होंने ऑलरेडी वो आइडर बनाना तैयार भी किया होगा, तो व्हाई वुड वी वांट टू लुक एट अ सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन या सर्विस. दैट्स वन, बिकॉज फिर we do not want anybody else also to produce the same kind of idea or solution, right? दूसरा है जैसे मैंने पहले ही बताया, दोनों जो है वाटर एंड वेस्ट, उसमें जो भी कमी हो या उसका क्वालिटी में भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट औरतें और बच्चों पे ही होता है. तो और इसीलिए हमने थीम एंड जेंडर क्लाइमेट एक्शन कहा गया. तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इवैल्यूएशन हमारा ये है कि हाउ इज द सॉल्यूशन हेल्पिंग द जेंडर, द नॉन मेल जेंडर, आइदर विमेन या द नॉन मेल जेंडर, मतलब LGBTQ कम्युनिटी को. आधे उनके नजरिए से आपने सोचा है सॉल्यूशन को, ये भी हम देखते हैं इवैल्यूएशन में. तीसरा जो है, इट्स मोर टू डू विथ स्केल. सॉल्यूशन आप छोटा सा भी सॉल्यूशन कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँ वेस्ट में, तो सबसे इंजीनियर सॉल्यूशन था घर पे ही कंपोस्ट करना, हाउ टू डू होम कंपोस्टिंग एट होम. दिस वाज, मैं जब बैंगलोर में रहती थी तो बैंगलोर में एक प्रोडक्ट डिजाइनर थी फेमस, तो 20 साल पहले उसने एक सिंपल सा प्रोडक्ट क्रिएट किया जो घर पे ही बैठे हम इजीली वेस्ट को, हमारे स्पेशली किचन वेस्ट को कंपोस्ट कर सकते हैं. उसका आइडिया सिंपल था. उसने ऐसा डिजाइन किया, अपना जो नॉर्मल मटका है, मटके को लेके उसने ऐसा डिजाइन किया कि घर पे भी बैठ के हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. बस 15 दिन में एक बार जो भी हम किचन वेस्ट फेंकते हैं उसको बस 15 दिन में एक बार हमें बस उसको फिराना होता है वेस्ट को. एंड नीचे का मटका जो था, नीचे के मटके में वेस्ट का हम टी कंपोस्ट कहते हैं, मतलब वो लिक्विड कलेक्ट होता है. एंड वो लिक्विड जो है आप आपके घर के जो भी पौधे हैं उसमें अगर स्प्रे भी कर सकते हो या मिट्टी में भी मिला सकते हो, और वो पौधे को अपने आप एक बायो कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर मिल जाता है. तो मतलब आपको खरीदने का जरूरत नहीं कहीं बाहर से फर्टिलाइजर, आपके घर पे ही फर्टिलाइजर बन जाता है. दूसरा है, ऊपर के मटके में जब वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है
तो वो एज अ कंपोस्ट सॉइल टाइप बन जाता है। अगेन ये जो कंपोस्ट सॉइल है आप अपने पौधे में या गार्डन में भी डाल सकते हो। अगेन आपको फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो उसने बस ये सिंपल सोल्यूशन क्रिएट किया था एंड द कॉस्ट ऑफ दिस एंटायर वेस्ट कंपोस्टिंग सिस्टम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ 10-15 साल पहले शायद ही कुछ 1000 या 2000 रुपए ही थे। एंड ये लाइफ टाइम था। ऑफ कोर्स यू कैन एज लॉन्ग एज मटका ब्रेक नहीं होता है आप यूज कर सकते हैं। एंड ब्यूटीफुल भी था। आप घर के किसी भी कोने में आप रख सकते हैं। आपका घर के जो लेआउट है उसके साथ भी वो मिलजुल जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्यूशंस आप कर सकते हो जो ज्यादा कॉस्ट नहीं करता हो बट इंजीनियस है। दूसरा स्केल, मतलब अगर आप जो भी सॉल्यूशन लेके आओगे तो इट शुड बी प्रैक्टिकल। ये नहीं कि उसके लिए अगर किसी को 2 करोड़ रुपए या 20 मिलियन रुपए अगर खर्चा करना पड़े और फिर ही जाके वो प्रोडक्ट या सर्विस तैयार हो, तो 1A आपको मोस्ट लाइकली आपको कस्टमर्स भी नहीं मिलेंगे, इन्वेस्टर्स भी नहीं मिलेंगे इतने कॉस्टली आइटम के लिए। तो स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। तो सॉल्यूशन जो है एक तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, इट शुड बी इजीली इम्प्लीमेंटेबल या इजीली प्रोड्यूस्ड। तो आपको वो इजीली तैयार होके आना चाहिए। एंड अगर सर्विस है तो अगेन सर्विस शुड बी इजीली अवेलेबल। ऐसा नहीं कि वो कहीं इंडिया में नहीं बट कहीं और देश में इस्तेमाल होता जाए। और चौथा जो है, बिकॉज ये साल का थीम जैसे दीपाली मैडम ने बताया, वाटर और वेस्ट ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज या कंजम्पशन आइटम्स है जो मुंबई में अलग होता होगा और पुणे में शायद अलग होता होगा, सतारा या गांव में कहीं और तरीके से होता होगा। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में शायद वेस्ट अलग तरीके से हो, या इवन विद इन मुंबई लेट्स से एरियाज वेयर यू नो कांदिवली वेस्ट जहाँ पे गुजराती लोकेशन है, तो ज्यादातर वहाँ पे वेजिटेरियन ईटर्स है, तो वहाँ की वेस्ट डेफिनेटली अलग होगी फ्रॉम कंसिडर एनी अदर पार्ट ऑफ द सिटी। तो ये भी एक चीज जो हम इवेल्युएट करेंगे, इसे हम हाइपर लोकल कहते हैं। तो वील ऑल्सो लुक एट द सॉल्यूशन। जो आप सॉल्यूशन जो प्रेजेंट करेंगे, इट शुड बी मेंट फॉर अ लोकल एरिया, आइदर आपके नजदीक और विद इन योर सिटी या विलेज। तो इट शुड बी बेनिफिटिंग दैट पर्टिकुलर लोकल एरिया या दैट पर्टिकुलर लोकल पीपल। कहने का मतलब अगर आपका सॉल्यूशन पूना में बैठे आपने सॉल्यूशन तो लेके आए बट वो सॉल्यूशन शायद इट इज मोर यूजफुल फॉर समबडी सिटिंग इन यूपी, तो हम उसे पॉइंट्स नहीं देंगे वो सॉल्यूशन को। फॉर हाइपर लोकल वी विल नॉट गिव द पॉइंट्स फॉर दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन शुड बी लोकल। आपके जो रीजन है या आपकी लोकेलिटी है उसके लिए ही होना चाहिए। और बहुत सारे और भी है बट ये 4 में इवैल्यूएशन के हम पॉइंट्स मेनली देखते हैं। बाकी तो फिर और भी आगे पॉइंट्स देंगे बट एटलीस्ट ये 4 मेन की थिंग्स है जिसके बेसिस पे हम इस साल की जो थीम है इंजीनियरिंग वाटर एंड इंजीनियरिंग वेस्ट, ये इस साल के इसमें ये 4 चीजें बहुत अहमियत बनती है। एल्सा, anything more in terms of evaluation? No, I think that is a great overview, and I think thank you, Lata, for being so detailed. Yes, Dipali, thanks a lot for being here. Lata, thanks for all the details, and I think Vaibhavi is now going to show them good examples of applications and not so good examples of applications. So, yeah, so thank you, Lata, for that. Thank you so much. थैंक यू सो मच लता मैम एंड दीपाली मैम। आपने हमारे लिए एक वो होता है ना, एक कीड़ा जैसे डालते हैं दिमाग में, अब बच्चे सोचेंगे, उस तरीके से आपने पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज किया है। मैं अब आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखाऊंगी जो हमें पिछले सबमिशन से मिले हैं। जैसे आपने यूथ इनोवेशन चैलेंज का जो फॉर्म है जो रिया दोबारा चैट में डालेगी,
सिंपल फॉर्म है, आपकी बेसिक डिटेल्स है यहाँ पर। बस एक चीज जो हम यहाँ पे रेफर करने वाले हैं वो है आपका डिस्क्रिप्शन इनोवेशन का, विच इज व्हाट एग्जैक्टली इज द आइडिया फॉर द इनोवेशन दैट यू आर पिचिंग। वो चीज मैं छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगी। मैं जानती हूँ कि दीपाली मैम और लता मैम ने इसको ओवरआर्चिंग थीम से आपको जोड़ा है, तो आपको पता है कि आपको थीम में लेयर्स क्या है, और उस चीज को आप जैसे हमारा काम जेंडर से रिलेटेड है, तो जेंडर से आप किस तरीके से रिलेट करोगे। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूंगी और आपको 2 एग्जांपल्स दिखाऊंगी। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ, जो है ये पिछले साल का एक बहुत प्यारा इनोवेशन पिच किया था, जो है गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडमा, जिसमें पिछले साल के हमारे यूथ इनोवेशन चैलेंज का थीम था क्लाइमेट जस्टिस एंड जेंडर। अब इसमें इन्होंने ये पिच किया था कि हमारी जो ग्रैंड मदर्स हैं, जो हमारे जो हमारी पिछली जनरेशन्स हैं, वो एक ऐसा ड्राइव निकाले, एक ऐसा प्रोग्राम निकाले जहां हम हमारे ग्रैंड मदर्स को, हमारी नानियों को, दादियों को एनकरेज करें प्लांट लगाने के लिए। तो उस तरीके से जो आज वो प्लांट लगा रहे, शायद वो आज कल जाके हमारी आगे वाले जनरेशन के लिए काम आएगा। इट्स अ स्मॉल इनोवेशन, इट्स अ स्मॉल पिच, आइडिया प्यारा है, स्ट्रक्चराइज्ड है, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, लॉन्ग टर्म आइडिया है। मगर अगर आप इस आइडिया को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जेंडर से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट उन्होंने हाईलाइट किया नहीं है या फिर कर नहीं पाए हैं। इट हैज ओनली स्टक टू वन एस्पेक्ट विच इज क्लाइमेट जस्टिस, जो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया, मगर उसको वो किसी प्रकार से कनेक्ट नहीं कर पाए जेंडर से। छोटा एग्जाम्पल, अच्छा पिच है, शायद वो इसी पिच को दोबारा एडजस्ट करके भेज सकते थे, जहां पे वो इसी आइडिया को जेंडर से किसी प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है ये जो है 1000 लीटर मॉड्यूलर ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम का, जो अच्छा एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने इनोवेशन को जेंडर से रिलेट किया है और किस तरीके से उन्होंने स्पेसिफिक चीजों पर डील करने की कोशिश की है। जैसे लता मैम और दीपाली मैम कह रहे थे कि आपका जो भी इनोवेशन है वो बड़े स्केल पे भी हो सकता है या फिर छोटे स्केल पे भी हो सकता है। अब इन्होंने जो इनोवेशन पिच किया है, इनका इनोवेशन इस प्रकार का था कि घर में, किचन में जो वेस्ट पानी आता है, जो चाहे बर्तन धोने से हो, चाहे आपके नहाने से हो, ये सारा जो वेस्ट पानी है, इस पानी को हम रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो ये उनका पिच था, वेरी सिंपल, ऑन द पॉइंट। इनोवेशन का टारगेट क्या है, इनोवेशन का स्केल क्या है, इनोवेशन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। बढ़िया चीज इन्होंने जो की थी मॉड्यूलर ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम की, ये था कि इन्होंने इस आइडिया को जेंडर से कनेक्ट करके दिखाया। ये बताया कि अगर कल जाके जैसे लता मैम भी कह रही थी, कल अगर हम इस स्थिति में पहुंचे जहां हमें पानी की बहुत बहुत आवश्यकता होगी, पानी को ढूंढने के लिए या फिर पानी को रिटेन करने के लिए औरतें ही बाहर जाती हैं। जैसे आपको पता है, गांव में हो, शहरों में हो, पानी ढूंढने के लिए औरतें बाहर निकलती है, तो उसका इम्पैक्ट औरतों पे पड़ता है, और उस तरीके से उन्होंने उस चीज को जेंडर से लिंक कर दिया था। एक और एग्जांपल है एलपीजी बेस्ड सैनिटाइजर पैड इंसिनरेटर का। बेसिक आइडिया है क्लाइमेट के लिए कि हम वेस्टेज कम करेंगे, पैड वेस्टेज। इम्पैक्ट इस तरीके से औरतों पे पड़ेगा कि क्योंकि औरतों के सैनिटरी पैड्स का वेस्टेज इतना ज्यादा है, उसके एक्सपेंस को हम नीचे कैसे ला सकते हैं और वेस्ट को नीचे भी कैसे ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एग्जांपल्स में उनके इनोवेशन में किसी प्रकार से उन्होंने जेंडर को कनेक्ट किया है। और जैसे लता मैम कह रही थी, जेंडर का लेंस सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए भी हो सकता है, जहां पर आप LGBTQI कम्युनिटी का इंटरकनेक्शन दिखा सकते हैं, क्यूअर कम्युनिटी का इंटरसेक्शन दिखा सकते हैं आपके इनोवेशन के साथ। तो बस उतनी 2 चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिस भी प्रकार का आप इनोवेशन साथ में आगे रखें, उसके स्पेसिफिक डिटेल्स दें, उसकी स्केल समझें,
आपका टारगेट क्या है, आप लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, और किस तरीके से आप उसको थीम में बिठा सकते हैं। और अगर अभी भी आपके पास आइडियाज हैं जो आप अभी सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं कि शायद ये आइडिया मेरा फिट होगा या नहीं होगा, I think this is the time that you pose your questions, ask your questions to the experts on the webinar right now. आप जाने कि आपका इनोवेशन आगे एप्लीकेशन में किस तरीके से आप आगे बढ़िया तरीके से डाल सकते हैं। जैसे प्रियल कह रही थी, आपको इस पूरे चैलेंज में, इस पूरे चैलेंज के ड्राइवर आप हो। आपको आगे आके क्वेश्चंस पूछने, आपको आगे आके सजेशन देनी है, आपको आगे आके पूछना है कि आपका गोल क्या है। तो विद दैट आई विल जस्ट ओपन द फ्लोर फॉर एनी क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क अवे राइट नाउ। या I know we're going to get a lot of questions in the coming weeks. It's just that they're not speaking right now, but that is okay. You can put it in the chat as well. We'll take this webinar a little further and we will go back to अंडरस्टैंडिंग द स्टेप्स ऑफ द चैलेंज, ताकि आपको पता चले कि चैलेंज किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। हम थीम के बारे में जान चुके हैं, हम पास्ट पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस के बारे में जान चुके हैं। अब जानेंगे कि इस साल का चैलेंज किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस साल का चैलेंज थोड़ा ऑफलाइन और थोड़ा ऑनलाइन दोनों तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो आई विल गिव द फ्लोर टू सोनाली। थैंक्स वैभवी। तो जैसे वैभवी ने कहा, यू heard about the theme of the challenge, past participants, expectations क्या है। तो अभी we'll just take you a bit through how exactly what will be the process followed in the challenge, ये कैसे आगे बढ़ेगा। तो step 1 is attend the webinar जो आपने किया है in order to learn more about it, and of course fill in the application form. अभी भी the application form has just been put in the chat box, so you can refer to that, fill it in. अगर किसी को भी help चाहिए वो fill out करने में, you can definitely get in touch with us and we'll be happy to help you to fill out that form. Abhi, once we get in the application, and don't feel that एक team को you can only put in one innovation. If you have multiple ideas in mind, आपके पास बहुत सारे ideas है, so you can put in more than one application. Just make sure for each innovation you put in one application. So one team can put in even 2 or 3 application forms. That's absolutely fine. So with all the applications that we get, we will have a selection process जहाँ पे a panel of jury members will select the teams that will go through to the end of the challenge. So step 1 will be the onboarding of the team, and this will happen in September. So क्या होगा? We will send the teams an email about their selection along with who is your mentor. Now this mentor will be with you throughout the challenge. This mentor will hold your hand. They will be an expert in the field in which your innovation is. तो जो भी फील्ड में आपका इनोवेशन है, उसी फील्ड में आपका मेंटर भी एक्सपर्ट होगा. We try to match it that way. But as even the past contestants told you, you are the driver, so you have to make a list, you have to take the initiative, you have to ask the questions, make time for to set up meetings with the mentor. So we will have an onboarding session where we introduce you and your mentor to each other. Following that will be the incubation period of approximately 2 months, and during this we suggest that you have at least one meeting every 15 days with your mentor. You can meet the mentor online, of course. तो 15 दिन में please try कि एक meeting तो करें आपके mentor के साथ, और each meeting में try and fix कि during the next 2 weeks हम इस पे काम करेंगे. This is how we will develop our challenge. तो next meeting से you and your mentor can catch up कि ये हो गया है, ये नहीं हुआ है. How do we progress? How do we proceed? Apart from this, we will have
a number of master classes for you to attend, and these will only help you in increasing your knowledge. You will be, of course, masters in your own innovation. जो भी आपका innovation है, your वो उसके बारे में सब पता रहेगा आपको. पर we will also have master classes on other subjects like creating a business module, business plan कैसे करते हैं, business plan banana, to how to marketing. We will we sometimes have master classes on marketing, on finance. So because this is all what you will need in order to take your innovation forward. We normally have a master class in the art of pitching, क्योंकि आपका जो solution है फाइनल डे पे, जो आपका पूरा सोल्यूशन है, जो आपने 2 महीने और 2 महीने से ज्यादा उस पर काम किया है, यू विल हैव टू पिच दैट इन 5 मिनट्स टू द जूरी. आपको सिर्फ 5 मिनट्स मिलेंगे वो पिच करने को. So how do you pitch in 5 minutes? We will actually have a session where someone takes you through this. We'll also have a dry run जहाँ पे आपको opportunity मिलेगा to pitch to the team, to the RDF team, and we will give you feedback on कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, how you can change, how you can improve. ये final pitch जो होगा, this will be an in-person event, or this is planned at the moment for the 30th of November. यहाँ पे each team you will get a fixed period of time, like 5 minutes, to actually pitch your theme, pitch your idea, showcase your innovation, show us how it works, and also there will be a question answer session. The jury members questions पूछेंगे, and the best teams will be chosen और उनको cash prizes मिलेंगे. So also it is important for you to know that throughout this process, थोड़ा काफी intimidating लगता है, but throughout this process our team will be there with you. If you have any questions, you can call us, you can get in touch with us about anything. We will be in touch with you throughout. So this is just a brief overview of what to expect in the chat. Jaibavi, back to you. थैंक यू सो मच सोनाली. आपके पास कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं. करुणा पूछ रहे हैं, इज अ ग्रुप ऑफ 5 ओके? Tanya, is a group of 5 okay? Tanya, Sonali? You know, we find that the smaller the group, the easier it is, because what happens is if it's too big a group, then it's very difficult to get consensus. Not everybody is engaged. So for us, 2 to 4 is the right size. I would suggest, Karuna, if you can maybe you can have 2 groups. Am I audible? Yeah. Can you hear me? Okay, sorry, I've got a very bad throat. So I would suggest create 2 groups, Karuna, because what happens is easier to get your ideas across, because you'll have to work cohesively as a team and build on your idea. So you can have 2 groups. तानिया और एल्सा कह रही थी कि ग्रुप साइज हम जानबूझ के 2 से 4 के बीच का रखते हैं, क्योंकि इस ग्रुप साइज में आपको सहमति मिल सकती है इजीली, और आप एक टीम मैनेजमेंट और टीम बिल्डिंग इजियर होता है. इसीलिए 2 से 4 के बीच लोग आपके टीम में हो सकते हैं as per the rules. The floor is open for questions. किसी को भी और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं.
Okay, अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चंस नहीं हो तो फिर हम इस सेशन को, इस वेबिनार को रैप अप करने की कोशिश करेंगे। इस वेबिनार के बाद भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा इस समय, और आप बाद में आपकी टीम के साथ बात करने के बाद भी आकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखना कि फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 25 ऑफ अगस्त है। उसके पहले आप किसी प्रकार से आपका फॉर्म भर दीजिए, आइडियाज इनोवेशंस को थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज कर दीजिए, so that will be helpful. And if you have any doubt, of course, my email ID is there. You can reach out for more info, and if you have any questions also, रिया की भी है और मेरी email ID भी है और सोनाली की भी है। Yes. If we don't have any questions, I would like to take the session to its final stage. Elsa, is there anything else you'd like to say before we wrap it up? I would like to see lots and lots of ideas. No ideas stupid. So feel free. This is your opportunity to test it out, to see if it makes it. And the 10 teams, will receive mentoring, and they will attend master classes and also get certificates. So do apply. And we're looking forward to your ideas. And if you don't want to ask over here, maybe you can write to us. And also, first try filling the form. Don't wait till the 25th of August. Fill the form early, because then we can help you fine tune it, make it even clearer. Because remember, people have to understand what your idea is. So you can write to Sonali with your idea and leave your phone number so they can call you and help you fine tune it. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for attending the webinar. We hope it was helpful, कि आपको किसी प्रकार से किसी भी तरीके से थीम को अंडरस्टैंड करने में, चैलेंज को अंडरस्टैंड करने में मदद मिली। Thank you.